Hello students, welcome to the next lecture of ionic equilibria. This entire lecture will be based on solubility product, the last concept of ionic equilibria. Very important concept, interesting concept. Okay, so let's start with solubility product. Okay, now first of all, what is the meaning of solubility? solubility का मतलब क्या होता है? तो सिंपल तरीके से हम लोग solubility ये समझ सकते हैं कि solubility means a certain amount of substance dissolve in given amount of solvent, that is called as solubility. For example, in 100 ml of water, एक सॉल्ट लिया है मैंने, सॉल्ट AB, 100 ml में आप उसका 10 ग्राम मैक्सिमम डिजॉल्व कर सकते हैं. तो 10 ग्राम बिकम्स per 100 ml, gram per 100 ml, gram per ml becomes the solubility of a particular substance. So basically solubility क्या होता है? Solubility is nothing but the amount of substance dissolved in a given amount of solvent. And solubility is nothing but the concentration. तो solubility पहले समझना ज़रूरी है कि solubility का simple meaning ये होता है, it is the amount of substance dissolve in given amount of solvent. तो वो solubility समझो वो मोल्स में, सब्सटेंस आपने मोल्स में लिया तो solubility मोल्स पर लीटर हो सकती है, मोलार हो सकती है, ग्राम पर DM क्यूब हो सकता है, मतलब ग्राम पर लीटर भी लिख सकते हो, एक ही बात हो गई. तो इट कैन बी मोल्स पर लीटर, इट कैन बी ग्राम पर लीटर. दैट इज सॉलिबिलिटी. तो सॉलिबिलिटी का सिंपल मीनिंग ये होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अ गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज द सॉलिबिलिटी. सिंपल मीनिंग. नाउ व्हाट इज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट? तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट is for sparingly soluble salt. sparingly soluble salt मैंने आपको बताया था कि all salts are strong, मतलब अगर वो डिजॉल्व हो गए तो आयंस बना देंगे, दे अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन. बट सॉल्ट कैन बी डिवाइडेड एज कंप्लीटली सॉल्युबल एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल. कंप्लीटली मतलब जो पूरा पानी में डिजॉल्व हो गया, स्पेरिंगली मतलब आप ऐड कर रहे हो बट सर्टेन अमाउंट गेट डिजॉल्व, बाकी का अमाउंट अनडिजॉल्व होता है. तो वेरी few amount, small amount of a substance get dissolved in a water, that is a sparingly soluble salt like AgCl, PbCr2, Ag2Cr O4, CdCl2. ये सारे sparingly soluble salt है. इनको पानी में डालोगे तो ये पूरे डिजॉल्व होने वाले नहीं है. स्मॉल अमाउंट गेट डिजॉल्व, रिमेनिंग अमाउंट इज अनडिजॉल्व. तो वो सॉलिड फॉर्म में बॉटम पे रहेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा वो डिजॉल्व होने वाला नहीं है उसके अंदर. दैट इज अ sparingly soluble salt. सेकेंड थिंग, इट इज एप्लीकेबल टू अ saturated solution. Now do you remember what is the meaning of saturated solution? Where no more solute can be further dissolved, that is called a saturated solution, or you can say a dissolving capacity of the solvent is over to dissolve the solute. अब दो तरीके का समझना ज़रूरी है आप लोगों को. Listen to my explanation properly. Okay, suppose we take two beaker having 50 ml of water each. 50 ml of water each. In first beaker, suppose you took a completely soluble salt, and in a second beaker you added a sparingly soluble salt. That completely soluble salt which you are adding into first beaker is 5 gram. When you add to the beaker, आपने stir किया, dissolve हो गया. Maximum 5 gram से आप dissolve करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है. Then you will say, sir, the first beaker is a saturated solution of completely soluble salt where the space inside the solvent is over and no more solute can be further dissolved in it. तो वो saturated solution हो गया जिसमें आपने 5 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया. अब एक और 1 ग्राम डाल रहे हो, वो डिजॉल्व ही नहीं हो रहा. डिजॉल्व नहीं हो रहा मतलब वो 1 ग्राम ऐड कर रहे हो तो उसमें से थोड़ा अमाउंट डिजॉल्व होगा और सेम अमाउंट पे जो डिजॉल्व था वो अनडिजॉल्व हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि 5 ग्राम से ज़्यादा अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता. दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है ना. बट एक होता है
स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो सपोज अपने 5 ग्राम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट 50 ml के बीकर में ऐड कर दिया। अब उस 5 ग्राम में से सपोज 0.5 ग्राम इज गेटिंग डिजॉल्व एंड 4.5 ग्राम इज एट द बॉटम एट दैट टेम्परेचर। अब स्टर कर लिए, 0.5 ग्राम डिजॉल्व है, 4.5 ग्राम बॉटम पे। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो सॉल्वेंट उतना ही है 50 ml, बट सॉल्ट सिर्फ 0.5 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है, 4.5 ग्राम तो वो बॉटम पे ही है, क्यों वो डिजॉल्व नहीं हो रहा? मैंने बोला क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसके लिए उनका डिसोल्यूशन बहुत कम है। तो अब अगर मैं फर्स्ट बीकर देखता हूँ तो उसके नीचे, उसके बॉटम पे मुझे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जो आपने 5 ग्राम के बाद 1 ग्राम ऐड किया था। क्लियर है? तो ये सैचुरेट सोल्यूशन है। ये बीकर दिख रहा हूँ तो इसके भी नीचे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे मालूम है कि 4.5 ग्राम पार्टिकल एट दी बॉटम है और 0.5 ग्राम पार्टिकल डिसॉल्व हुआ है, लेकिन फिर भी पार्टिकल नीचे दिखाई दे रहे हैं। मतलब दोनों सोल्यूशन मुझे क्या लग रहे हैं? Saturated. So both of the solution is looking like saturated solution, but one is a saturated solution where the dissolving capacity of the solvent is over, and in second case it is a saturated solution of a sparingly soluble salt, जहाँ पर salt एक particular amount से ज़्यादा dissolve नहीं हो रहा है, it is getting dissolved only by 0.5 gram, remaining 4.5 gram is undissolved, तो it appears to be a saturated solution. So we are talking about saturated solution of sparingly soluble salt, not of completely. Okay, sparingly soluble salt का saturated solution के बारे में हम लोग ये बात कर रहे हैं। Okay guys, तो solubility product is nothing but is for sparingly soluble salt and for which solution? Saturated solution. अच्छा, and solubility क्या होता है? It is amount of substance dissolved in giving amount of solvent. Now solubility product को mathematically हम लोग study करते हैं। कैसा आएगा ये? Let us take an example of AgCl. Now AgCl is a sparingly soluble salt, ठीक है, जिसमें Ag1 होता है, Cl 1 मोल होता है। इसको मैंने एक्वस मीडिया में ऐड किया। जब एक्वस मीडिया में ऐड करूंगा तो सम अमाउंट ऑफ AgCl गेट डिजॉल्व इन एक्वस मीडिया टू फॉर्म Ag प्लस एंड Cl माइनस। मतलब ये जो AgCl है ये एक्वस मीडिया में डिजॉल्व हो गया है, बाकी का AgCl बॉटम पे रहेगा। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मैंने बताया था वो बॉटम पे रहेगा, दैट इज इन सॉलिड फॉर्म। सपोज ये आपका 4.5 ग्राम है और ये 0.5 ग्राम है, तो आउट ऑफ 5 ग्राम ऑफ AgCl 0.5 ग्राम इज गेटिंग डिजॉल्व एंड 0.5 ग्राम इज एट द बॉटम विच इज अनडिजॉल्व। ठीक है, आप स्टर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इससे ज़्यादा अमाउंट सोल्यूशन में आपको नहीं मिलेगा और इतना ही अमाउंट आपको बॉटम में मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि AgCl डिजॉल्व नहीं हो रहा है। आफ्टर रीचिंग दिस वैल्यू ऑफ 0.5 एंड 4.5, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि आफ्टर रीचिंग दिस वैल्यू ऑफ 0.5 एंड इन डिजॉल्व स्टेट एंड 4.5 इन विच स्टेट? अनडिजॉल्व स्टेट। ओके, मोल्स में ले लेते हैं इसको, 0.5 मोल्स इन डिजॉल्व स्टेट एंड 4.5 मोल इन अनडिजॉल्व स्टेट। आफ्टर रीचिंग दिस वैल्यू डिसोल्यूशन स्टॉप नहीं होगा। अगर यहाँ से 0.1 मोल डिसॉल्व होता है तो एट द सेम टाइम 0.1 मोल प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, लैटिस के फॉर्म में वापस आ जाएगा। मतलब डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? एनी सल्यूट विच कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम डिसॉल्व स्टेट टू अनडिसॉल्व स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन एंड दिस इज डिसोल्यूशन, कि ये डिसॉल्व हो रहा है। तो अगर 0.1 डिसॉल्व होगा तो 0.1 सेम स्पीड पे प्रेसिपिटेट होगा। मतलब ये अमाउंट और ये अमाउंट दिस विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, दिस विल रिमेन कांस्टेंट। सो देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसॉल्व एंड अनडिसॉल्व। नाउ जो डिसॉल्व हुआ है it's in salt, all salts are strong, and once it get dissolved it get ionized completely, so it get ionized to form Ag plus in aqueous state 0.5 mole plus Cl minus in aqueous state 0.5 mole. क्लियर है? सपोज दिस इज टेकन इन 1 लीटर, तो आप बोलेंगे सर 0.5 मोल्स पर लीटर हो गया, ये भी 0.5 मोल पर लीटर हो गया। सो दिस इज 0.5 मोल्स पर लीटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। सो मोल्स पर लीटर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन डिजॉल्व स्टेट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन डिजॉल्व स्टेट, उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिबिलिटी, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल S. सो वी कैन राइट डाउन कि योर मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन डिजॉल्व स्टेट इज 0.5 मोल्स पर लीटर। मतलब आप बेसिकली क्या लिख रहे हो? उसका सॉलिबिलिटी लिख रहे हो।
सिमिलरली Cl माइनस का भी यहाँ पर क्या लिख रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का भी क्या लिख रहे हो, 0.5 मोल्स पर लीटर, मतलब क्या लिख रहे हो, सॉलिबिलिटी. सो कैन वी राइट डाउन कि लेट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस solubility S in moles per liter. Even concentration of Cl minus will be equal to what? S moles per liter. Okay. Now in this equilibrium, तो आपने solubility मालूम पड़ गई कि भाई solubility 0.5 थी, इसको मैं हटा देता हूँ. तो आप एग्जाम्पल समझ गए कि when you add a certain amount of AgCl into water, some amount get dissolved, which get dissolved, it get ionized completely. अच्छा, उसके बाद दे विल रीच टू अ पॉइंट वेयर द रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन का मतलब एनी सब्सटेंस विच कम आउट फ्रॉम डिसॉल्व स्टेट टू अनडिसॉल्व स्टेट, मतलब वो आयंस के स्टेट में था और अभी वो सीधा सॉलिड स्टेट में आपके विजिबल स्टेट में आ गया. सो दैट इज प्रेसिपिटेशन, वो सॉल्यूशन से बाहर आ गया, दैट इज प्रेसिपिटेशन. सो अ स्टेट विल कम वेयर द रेट ऑफ डिसोल्यूशन will be equal to rate of precipitation. That state is called as equilibrium state. और उस स्टेट पे जितना अमाउंट Ag प्लस डिजोल्व होगा वो उसकी सॉलिबिलिटी हो जाएगी, जितना अमाउंट Cl माइनस डिजोल्व होगा वो उसकी सॉलिबिलिटी हो जाएगी. नाउ एट दिस इक्विलिब्रियम इफ यू अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन वी गेट K is equal to molar concentration of Ag plus into molar concentration of Cl minus upon molar concentration of undissolved AgCl. अनडिजॉल्व AgCl मतलब ये AgCl डिजॉल्व हुआ ही नहीं है और वही टेम्परेचर पे एट सेम टेम्परेचर ये डिजॉल्व होने वाला भी नहीं है, मतलब दिस अमाउंट इज डेफिनेटली अ कांस्टेंट वैल्यू. K is also a constant, so a constant into another constant give rise to a new constant called as Ksp. देखते हैं हम लोग ये Ksp क्या है. So we can write down Ksp is equal to molar concentration of Ag plus into molar concentration of Cl minus ions. अब मैं Ag प्लस की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, S द कॉन्सेंट्रेशन. Cl माइनस की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, S द कॉन्सेंट्रेशन. सो कैन आई राइट डाउन Ksp इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ सॉलिबिलिटीज. देयरफॉर दिस Ksp विल बी कॉल्ड एज solubility product constant and it is defined as Ksp is defined as product of molar concentration of ions, product of मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, रेज्ड टू द पावर दैट इज रेज टू 1 रेज टू 1. यहां पर Ag 1 था, Cl भी 1 था, मतलब इनका कोएफिशिएंट 1 है. देखो 1 मोल ऑफ Ag प्लस 1 मोल ऑफ Cl माइनस, तो ये 1s हो जाएगा, ये 1s हो जाएगा. दैट इज वाई आपने 1s इंटू 1s लिखा क्योंकि ये 1 मोल है, तो वही 1 मोल को आपने रेस किया है, सी प्रॉपरली. So can I write down solubility product is nothing but product of molar concentration of ions raised to the power equal to its coefficient. So this is a coefficient, stoichiometric coefficient. ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो वही raised to 1 लिखा, तो that is solubility product. तो solubility product is nothing but product of molar concentration of ion raised to the power equal to its stoichiometric coefficients. अगर ये 1 है तो रेस टू 1 आएगा, अगर ये 2 मोल्स होता तो रेस टू 2 and 2 आता. ओके गाइस, सो दिस इज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. ओके, अब आगे सुनो. प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन रेस टू द पावर इक्वल टू इट्स कोएफिशिएंट इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. लिखना जरूरी है क्योंकि हम लोग कौन से सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सैचुरेटेड, जिसमें और ज्यादा AgCl डिजॉल्व नहीं हो रहा था क्योंकि देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन डिजॉल्व सॉलिड एंड सोल्यूशन. तो इसके लिए सैचुरेटेड सोल्यूशन, इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ विच टाइप ऑफ सॉल्ट, ऑफ स्पेरिंगली soluble salt. So solubility product Ksp is defined as product of molar concentration of ions raised to the power equal to the stoichiometric coefficients in a saturated solution of a sparingly soluble salt. ये लिखना बहुत जरूरी है because Ksp is applicable to saturated solution of a sparingly soluble salt. Okay guys, इसमें जो भी नोट डाउन करना है कर लो, then I'll move ahead. Okay guys, let's continue with the solubility product. Now here we find out what is the definition of solubility product. Now
I'll remove this part. I'll write down molar concentration of Cl minus is also equal to solubility moles per liter में लिया यहाँ पर. Now let us derive a generalized form of KSP with solubility for all different type of salts. So हम लोग ने यहाँ पर देखो क्या लिया था, Ag1Cl1. तो यहाँ पर मैं अज्यूम करूँगा sparingly soluble salt AXBY which is in equilibrium, solid part is in equilibrium with XA raised to plus Y plus YB raised to minus X. Cation anion. X moles, Y mole, they are stoichiometric coefficients. Now there is a relationship between, बराबर देखो, there is a equilibrium between dissolved salt and undissolved salt, that is which remain at the bottom, like in case of AgCl solid state. Now molar, now we can write down that molar concentration of A plus Y will be equal to solubility, but how many moles? X moles, so X into solubility. And molar concentration of B minus X ions will be equal to Y into solubility, S. Now KSP is defined as what? KSP is defined as product of concentration of ions. So KSP is nothing but product of A plus Y into B raised to minus X. cation anion का product है, but raised to the power equal to its coefficient. तो raised to X क्योंकि इसका coefficient X है, raised to Y इसका coefficient Y है. But in place of molar concentration of A plus Y, A raised to plus Y, we can write down XS. So X into S raised to X. इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? Y into S raised to Y, क्योंकि YS लिखोगे with respect to molar concentration of B raised to minus X ions. Now KSP will be written as X raised to X, S raised to X, Y raised to Y, S raised to Y. Law of indices use कर लो यहाँ पर. So we can write down KSP will be equal to X raised to X, Y raised to Y, S raised to X plus Y. So this is the relationship between KSP and solubility for any different type of salt. मतलब अगर मैंने एक salt लिया, for example if I took a salt AB type, A1B1, जैसा AgCl है, यह salt है, BaSO4, Ba1, SO41, तो acid type के salt में X1 है और Y1 है. So for this type of salt, KSP will be equal to 1 raised to, देखो X यहाँ पर, X का वैल्यू क्या है? In case of A1B1 type of salt, I'll write down here, थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए मुझे, I'll write down here, नोट डाउन करना है इसमें, रिलेशन बिटवीन KSP and solubility product. Okay guys, so suppose it is AB type of salt. AB type मतलब मैं बताया हूँ AgCl, BaSO4, these are EB type of salt जहाँ पर A1, B1 होता है, मतलब यहाँ पर X का वैल्यू भी 1 है, this is X and Y is also 1. So for this type of salt KSP is written as, चलो X 1 हो गया, Y 1 हो गया, तो 1 raised to 1, 1 raised to 1, S raised to 1 plus 1, मतलब KSP will be equal to S square for A1, B1 type of salt. But suppose अगर salt है A2B type या तो फिर AB2 टाइप, एक ही बात हो गई, A2B टाइप या AB2 टाइप सॉल्ट है, जैसा PbCl2, PbBr2, ये सब AB2 टाइप ऑफ सॉल्ट है. तो हियर इन दिस केस वन ऑफ द वैल्यू विल बी 1, मतलब सपोज मैंने x को 1 ले लिया और y को 2 ले लिया, यहाँ पर आप x को 2 लोगे और y को 1 लोगे, तो एक ही बात हो गई. तो इन सच टाइप ऑफ सॉल्ट A2B और A1B2 है, suppose we take X as 1 and Y as 2, तो now KSP will be equal to 1 raised to 1, क्योंकि एक वैल्यू आपने 1 लिया है, दूसरा वैल्यू हो जाएगा 2 raised to 2, तो 2 raised to 2 is 4, S raised to 1 plus 2, तो we can write down 1 raised to 1, 2 raised to 2, S raised to 1 plus 2, तो 2 raised to 2 is 4, S raised to 1 plus 2 is 3, तो 4S cube, मतलब we can write down for this case KSP will be equal to 4S cube for A2B और for A1B2 type of salt. Suppose salt आ गया है AB3 टाइप या A3B टाइप, तो उसमें क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखो X को 1 ले लिया है मैंने और Y को 3 ले लिया है, तो 1 raised to 1, 3 raised to 3, S raised to 1 plus 3, मतलब 3 raised to 3 कितना हो जाएगा? 3 3 is 9, 3 is 27 into 1 is 27, तो 27 S raised to 4, तो here
we can write down the value of KSP will be equal to 27s raised to 4 for AB3 type of salt. Suppose a salt is a A2B3 type, या तो फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं A3B2 टाइप, एक ही बात है. जब पर x को मैंने 2 लिया है और y को 3 लिया है, तो 2 raised to 2 is 4, 3 raised to 3 is 27. ओके, सो 2 लिया तो 2 raised to 2 is 4, 3 raised to 3 is 27. तो 27 into 4 is 108. So for A2B3 type of salt, KSP will be equal to 108 S raised to 2 plus 3. So S raised to 5. So this is the relationship between KSP and solubility product for different type of salt. Please इसको note down कर लो, copy करो और note down करो. Then we'll move on to the important interesting part of KSP, application of KSP पे जाएंगे. Okay guys, I'll rub this out. Now let's move on to application of KSP. guys, KSP की अगर मैं बात करूं, you have to remember that KSP is a fixed value. याद रखने का, fixed value, इसका एप्लीकेशन बता रहा हूं. KSP is a fixed value for a given salt to make a solution saturated. It's a fixed value to make a solution saturated. Saturated मतलब no more solute can be further developed. For example, क्लास में एक बेंच है, वो बेंच पे सपोज मैक्सिमम 3 ही लोग बैठ सकते हैं, ओनली 3 स्टूडेंट कैन सिट ऑन दैट बेंच. तो दैट KSP वैल्यू ऑफ द बेंच विल बी 3. इट्स फिक्स्ड. KSP विल बी 3. इट्स फिक्स्ड टू मेक दैट बेंच सैचुरेटेड विद द स्टूडेंट. मतलब 3 बैठ गए तो उसके बाद कोई जगह नहीं होने वाली. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई वहां जगह नहीं है बैठने के लिए, इफ द प्लेस इज फुल, मतलब द स्पेस इज सैचुरेटेड, सो KSP वैल्यू ऑफ दैट बेंच इज 3. तो इट इज फिक्स्ड. अगर एक स्टूडेंट बैठेगा तो वो अनसैचुरेटेड है, 2 स्टूडेंट बैठेंगे तो भी स्पेस बाकी है, 3 बैठ गया तो वो फिक्स्ड हो गई जगह. सो याद रखने का, वैसे ही फॉर एवरी सॉल्ट KSP वैल्यू इज फिक्स्ड टू मेक द सोल्यूशन सैचुरेटेड. मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट लगेगा, अगर वो अमाउंट आयनिक का आपने डाल दिया सोल्यूशन में तो सोल्यूशन उस सॉल्ट के लिए सैचुरेट हो जाएगा. सपोज किसी का KSP दिया है 2.4 into 10⁻² मोलार. So 2.4 10⁻² molar is required to make a saturated solution of that salt. So that will be a KSP and it is a fixed value, ये change नहीं होगा. ठीक है? And KSP is defined in terms of product of concentration of ions. ठीक है? Product of concentration of ions को हम लोग बोलेंगे ionic product. आयनिक प्रोडक्ट कैन चेंज, मतलब आप आयंस चेंज कर सकते हो. अगर आपने समझो AgCl का KSP देख के सैचुरेट सोल्यूशन बना लिया, ठीक है, तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट के Ag प्लस Cl माइनस है. लेकिन अगर आपने बाहर से फ्रॉम एक्सटर्नल यू ऐड AgNO3, तो यू आर एडिंग एक्स्ट्रा Ag प्लस इन दैट AgCl सोल्यूशन. सो अभी आप क्या कर रहे हो, Ag प्लस यानी आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, एक बेंच है, मैंने बताया था उस पर मैक्सिमम 3 स्टूडेंट बैठ सकते हैं टू मेक द सोल्यूशन सैचुरेटेड. आप एक स्टूडेंट है तो अनसैचुरेटेड, एक और बढ़ा उसके अंदर तो बढ़ा सकते हो. मतलब यू कैन इंक्रीज आयंस, लेकिन बट यू कैन नॉट इंक्रीज द स्पेस ऑफ बेंच, दैट इज फिक्स्ड. मतलब KSP फिक्स्ड रहेगा, 3 ही लोग बैठ सकते हैं. बट अगर कोई एक बैठा हो, 2 बैठा हो, 3 बैठा हो, तो आप आयंस यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ा रहे हो. पहले एक स्टूडेंट बैठा था, फिर दूसरा बैठा है, फिर तीसरा बैठा है. सो यू कैन इंक्रीज number of students up to 3 on that bench, but the saturation point is 3, matlab that is fixed. But you can decrease and increase the number of student on that bench. 3 से 1 बैठ गया, 3 कम करके 1 ही बैठा है, तो मतलब आप आयंस कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है. मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेंच पे चेंज हो सकते हैं, बट बेंच का सैचुरेशन पॉइंट विल रिमेन कांस्टेंट. वैसे ही सॉल्ट का KSP एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता. That value is used to make a solution saturate. अब
सोल्यूशन में आयंस होते हैं, आप आयंस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर सकते हो, मतलब आयनिक प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस कैन चेंज बट KSP कैन नॉट चेंज, इट फिक्स्ड. ओके, अब रिमेंबर देयर आर 3 केसेस यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले, इफ KSP एंड IP में से, आयनिक प्रोडक्ट में से, if KSP is more than IP, then it is a unsaturated solution. If KSP is equal to IP, then it is a saturated solution. And if KSP is less than IP, or you can say if IP exceed KSP, then it becomes super saturated, and in that case precipitation will take place. तो प्रेसिपिटेशन कब होगा? ओनली व्हेन आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP. आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP. क्लियर है? मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी फिर से वही एग्जाम्पल ले रहा हूं, 3 स्टूडेंट कैन सिट ऑन अ पर्टिकुलर बेंच, मतलब KSP इज 3, तो इट इज फिक्स्ड दैट KSP ऑफ द बेंच इज 3. सिर्फ एक ही स्टूडेंट बैठा है, इफ ओनली वन स्टूडेंट इज ऑन दैट बेंच, मतलब the space is there, मतलब that solution is unsaturated. If all 3 sits on it, space is filled. But if one try to exceed, if one more, अगर 4th स्टूडेंट कैसा कैसा करके पुश करके आएगा, तो एक साइड से जो स्टूडेंट आएगा उसके ऑपोजिट साइड से दैट स्टूडेंट विल फॉल फ्रॉम द बेंच. मतलब एक कॉर्नर से, अगर समझो बेंच के लेफ्ट कॉर्नर से स्टूडेंट एंटर कर रहा है, तो राइट कॉर्नर का स्टूडेंट गिर जाएगा, बाहर आ जाएगा, मतलब वो सोल्यूशन के बाहर आ गया. सोल्यूशन के बाहर आ गया मतलब वो प्रेसिपिटेट हो गया, क्योंकि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? एनी डिसॉल्व सॉल्यूट कम आउट ऑफ द सोल्यूशन इन अ सॉलिड स्टेट, दैट इज अ प्रेसिपिटेशन. सो इफ 3 स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड इफ वन मोर कम्स हियर, इफ पुश दैट स्टूडेंट, तो ये वाला जो 3rd स्टूडेंट है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि अब इसको अकोमोडेशन चाहिए, तो ये बाहर आ गया, तो 3 हो गए फिर से. मतलब KSP इज फिक्स्ड, लेकिन ये आयंस बाहर आ गया, दिस आयंस इज कमिंग आउट, क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो गई, द स्पेस इज सैचुरेटेड लाइक अ कॉमन आयन. So now what will happen here? In that case, that person will fall, मतलब that ion will come out of the solution from dissolved state, मतलब वो बेंच पे था पहले, into undissolved state. तो that is called as precipitation. So precipitation कब होगा? Only if ionic product exceed KSP. Example देखो, AgCl salt है, the KSP value of AgCl is 10⁻⁻10, fixed है. अब मैं आपको 2 कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ. AgNO3 solution, you mix AgNO3 solution with AgCl, AgNO3 solution with NaCl, so it result into the formation of AgCl plus NaCl. अब ये AgCl को प्रेसिपिटेट करवाना है, मतलब इसको सॉलिड फॉर्म में बाहर निकालना है. तो सपोज मैंने अगर 10⁻⁻6 मोलार AgNO3 में 10⁻⁻6 मोलार NaCl ऐड किया, तो जो AgCl बनेगा वो 10⁻⁻6 मोलार होगा. ठीक है, लेकिन जब आप ये दोनों को ऐड करते हो तो यहाँ से Ag प्लस कितना है? 10⁻⁻6. ओके, यहाँ से Cl माइनस कितना आएगा? 10⁻⁻6 मोलार. क्लियर है? नाउ AgCl के लिए KSP इज इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस into molar concentration of Cl minus raised to 1. अब in option A, Ag plus हम लोग को AgNO3 से we are getting Ag plus from AgNO3, how much? 10⁻⁻6. Cl minus from NaCl कितना मिल रहा है? 10⁻⁻6, मतलब total value 10⁻12. तो this is product of ionic concentration, that is called as ionic product. आपने ionic product निकाला, कितना आ रहा है? 10⁻12 आ रहा है. KSP कितना था? 10⁻10. तो 10⁻10 एंड 10⁻12 में 10⁻12 इज अ स्मॉलर वैल्यू, तो आपका जो IP मिला आपको आयनिक प्रोडक्ट वो 10⁻12 मिला, और जो KSP गिवन है वो 10⁻10 है. मतलब कैन आई सेट डाउन हियर इन दिस केस KSP इज ग्रेटर देन IP. तो KSP जब IP से ज़्यादा होता है इट इज़ अनसैचुरेटेड, देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन. सपोज मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में आई हैव टेकन AgNO3 10⁻⁻4 molar and NaCl 10⁻⁻2 molar. I mix it to form what? AgCl and NaNO3. NO3 लिखना था, NaNO3.
अब इस केस में AgCl प्रेसिपिटेट होगा कि नहीं देखते हैं। तो यहां से आपको जो Ag प्लस मिलेगा, Ag प्लस, और यहां से जो आपको Cl माइनस मिलेगा उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो Ag प्लस आपको कितना मिल रहा है यहाँ से 10⁻⁴, Cl माइनस कितना मिल रहा है 10⁻², दैट इज 10⁻�6। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आयंस, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट 10⁻�6 है, और गिवन KSP कितना 10⁻10। मतलब कैन आई राइट डाउन के हियर इन दिस केस, इन द सेकेंड केस KSP, और वी कैन राइट डाउन IP एक्सीड KSP। IP ज्यादा है 10⁻6 है, और KSP कितना है 10⁻10 है। तो इफ IP इज ग्रेटर देन KSP, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा प्रेसिपिटेशन। सो ऑप्शन बी में प्रेसिपिटेशन होगा, ऑप्शन ए में नहीं होगा। सो you understood कि KSP is a fixed value, it won't change for a given salt at a given temperature. KSP is a value which is used to make a solution saturated, that is fixed. आप product of ions change कर सकते हो। याद रखना, वो bench का example मैंने दिया था कि only 3 students can sit, तो that is a fixed KSP value. अगर एक बैठेगा तो unsaturated, 2 बैठा तो unsaturated, 3 बैठा तो saturated, and if 4 try to sit, then from one side, then from the other side one will fall, that is called as precipitation, coming out of the solution from dissolved state to the undissolved state. ओके, एंड ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, MCQs आएंगे, तो सॉल्व करने आना चाहिए कि इन विच केस प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। तो प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस ओनली इफ IP एक्सीड्स KSP. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट डाउन अपार्ट फ्रॉम दिस, रिमेंबर मैं लिख देता हूं, फिर उसको एप्लीकेशन में हम लोग यूज करेंगे। सॉल्ट विथ less KSP requires less ions for precipitation and will precipitate out first. मतलब जिसका KSP सबसे कम, उसका प्रेसिपिटेशन सबसे फास्ट, जल्दी वो प्रेसिपिटेट होगा। ऑब्वियस बात है, हम लोग 4 बेंच ले लेते, 3 बेंच ले लेते, एक बेंच पे मैक्सिमम 3 कैन सिट, इन अनदर बेंच मैक्सिमम 4 कैन सिट, इन लास्ट बेंच मैक्सिमम 5 कैन सिट। सो फर्स्ट बेंच में 4 लोगों में ही प्रेसिपिटेशन दिखेगा, बट लास्ट बेंच में यू रिक्वायर, जहां पर मैक्सिमम 5 बैठ सकते हैं, वहां पर यू रिक्वायर 6 people to show precipitation. So एक चीज याद रखने का, salt with less KSP require less ions for precipitation and will precipitate out first. जिसका KSP सबसे कम, वो सबसे पहले precipitate होगा, और उसको precipitate करने के लिए आयनिक concentration भी कम लगेगा, क्योंकि KSP वैल्यू उसका less है। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन करना है, प्लीज नोट इट डाउन, देन विल मूव ऑन टू दी group radical separation for solubility product. Okay, now let's find out the use of KSP in analysis of basic radicals, which you do in your practicals in 12th standard. Separation of radicals from different groups, group 2A, 3B, group 4A, like that you separate different basic ions. इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, that you will find out in your manuals, practical manual में आपको मिलेगा about basic group radicals, separation of radicals. Okay, that is basically the metal ions. वो आपको separate करना होता है, different groups में होते हैं, and that group is with respect to their KSP value and with respect to their precipitation with different anions. इसके लिए उनको separate किया जाता है। अभी मैं आपको 2 group radicals के बारे में बात बताता हूँ। Let's take a first example. We are basically talking about analysis of basic radical. That is qualitative analysis. Of basic radicals. प्रैक्टिकल मैनुअल बुक में देखना ये बात।
इसका फर्स्ट केस लेता हूँ। इसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं बने हुए, मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप 2 की। ओके, नाउ इन ग्रुप 2 वी हैव कटायंस लाइक Cu2+, Cd2+, Ba2+, ये सब ग्रुप 2 के कटायंस है। ओके, मतलब कॉपर का आयन आ गया, Cd2+ आ गया, Ba2+ आ गया, 2+ आ गया, Ba2+ आ गया, Cd2+ एक्सेट्रा, दीज आर ग्रुप 2 कटायंस, ये ग्रुप 2 के सेक्शन में आते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर ग्रुप, ग्रुप 3A। नाउ इन केस ऑफ ग्रुप 3A मैं 3B ले लेता हूँ, 3B क्योंकि सल्फाइड के फॉर्म में आता है, वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में सही है। इन केस ऑफ ग्रुप 3B वी हैव आयंस लाइक CO2+, Ni2+ एक्सेट्रा, ये सब ग्रुप 3B के कटायंस है और ये ग्रुप 2 के कटायंस है। इसमें Sn भी आता है, मैंगनीज आता है, इसमें मैंगनीज भी आ सकता है, स्टैनस भी आ सकता है, जिंक भी आ सकता है, ये सब 3B के कटायंस है। नाउ वी नीड टू सेपरेट देम। अब टास्क क्या है कि एक बीकर में आई हैव अ सोल्यूशन, टीचर ने मुझे सोल्यूशन दिया है। अब इस सोल्यूशन में सपोज मैंने आपको ये सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन में 2 आयंस है, Cu2+ आयंस है और सपोज Ni2+ आयंस है, ये दोनों आयंस ले लेते हैं हम लोग। ओके, Cu2+ एंड Ni2+ आयंस। नाउ ये दोनों आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है, आई एम आस्किंग यू टू सेपरेट Cu2+। मैं आपको बोल रहा हूं कि Cu2+ को सेपरेट करो, किससे? Ni2+ से, या तो फिर Ni2+ को सेपरेट करो, एक ही बात हो। तो आई एम आस्किंग यू टू सेपरेट Cu2+ फ्रॉम Ni2+। नाउ दिस सॉल्यूशन हैज 2 आयंस इन इट, Cu2+ बिलोंग्स टू ग्रुप 2, Ni2+ बिलोंग्स टू ग्रुप 3B। ओके, अब दोनों आयंस को अगर मुझे बाहर निकालना है या किसी एक आयन को भी बाहर निकालना है तो मैं वो आयन के फॉर्म में बाहर नहीं निकाल सकता। आई हैव टू कन्वर्ट दिस आयन इनटू अ सॉल्ट विच गेट प्रेसिपिटेट इन सॉलिड फॉर्म, और सॉल्ट इज मेड अप ऑफ कटायन अनायन। तो ये एक कटायन है, ये भी कटायन है, इसके साथ मुझे कोई अनायनिक पार्ट डालना होगा। तो अगर बराबर आप मैनुअल स्टडी करोगे तो वहां पर क्लियरली मेंशन है कि ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3B कटायंस दे आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ दे आर सल्फाइड्स। ठीक है, इसके लिए वहां लिखा होता है कि यू नीड टू ऐड H2S टू सेपरेट देम। तो अगर मैं H2S ऐड कर दूं in this solution, तो H2S is a weak electrolyte, yes it dissociate to gives what? H+ and sulfide ions, but जो sulfide ions produce होगा, that sulfide ions combine with Cu2+ to form CuS, मतलब ये Cu2+ से combine होके CuS बनाएगा, and ये Ni2+ से कंबाइन होके NiS भी बना सकता है। तो CuS का आपको पीपीटी मिलेगा, उसके साथ में स्मॉल अमाउंट, यू गेट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ NiS अलॉन्ग विथ CuS। तो अब अगर दोनों बाहर आ गए तो फिर सेपरेट कहां से होगा? तो क्या करना है हमको Ni को रोकना पड़ेगा। वी नीड टू स्टॉप Ni टू रिएक्ट विथ सल्फाइड। कैसा करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। कैसा करेंगे? हम लोग ने क्या किया, दोनों की KSP वैल्यू स्टडी करी, KSP ऑफ दिस सॉल्ट एंड KSP ऑफ दिस सॉल्ट, एंड वी फाउंड आउट दैट KSP ऑफ CuS इज लेस देन KSP ऑफ NiS। मतलब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू कम है, इट्स अ फैक्चुअल पार्ट एज कंपेयर टू व्हाट? NiS। and we know that salt with less KSP require less ions for precipitation। तो क्यूपरिक सल्फाइड का KSP कम है, तो क्यूपरिक सल्फाइड का KSP कम है, therefore Cu2+ requires less sulfide and Ni2+ require more sulfide क्योंकि इसका KSP ज़्यादा है। ठीक है, इसके लिए दोनों के सेपरेशन में मैनुअल में क्या लिखा है कि फर्स्ट ऐड HCl देन यू पास H2S गैस टू इट। क्यों? क्योंकि जैसे आप HCl ऐड करते हो, HCl प्रोड्यूस करता है H+ and Cl-, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर जब आप H2S पास करते हो तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, आपको याद होगा एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस, तो सम अमाउंट ऑफ सल्फाइड विल कंबाइन विद H+ टू फॉर्म H2S अगेन, मतलब पहला वाला रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा
अकॉर्डिंग टू ली-चाटलियस प्रिंसिपल और अकॉर्डिंग टू कॉमन आयन इफेक्ट पहला वाला रिएक्शन रिवर्स हुआ। अगर फर्स्ट रिएक्शन रिवर्स हुआ मतलब सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। At such a less concentration of sulfide, only Cu2 plus combines with sulfide to form CuS. Ni2 plus won't combine क्योंकि सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है। ठीक है, तो आपने एक चीज नोटिस किया, अगर मुझे Cu2 प्लस Ni2 प्लस को सेपरेट करना है तो आई नीड टू स्टडी KSP। KSP से मुझे यह आइडिया मिलेगा कि क्यूप्रिक सल्फाइड का KSP NiS से कम है, Therefore Cu2 plus require less sulfide। इसके लिए मैंने सिर्फ H2S गैस पास नहीं किया, क्योंकि H2S गैस पास कर दा तो क्यूप्रिक सल्फाइड के साथ स्मॉल अमाउंट का NiS भी आ जाता, तो सेपरेशन नहीं हो पाता। सो आई वांट टू स्टॉप Ni2 प्लस टू रिएक्ट विद सल्फाइड। तो मैंने क्या किया उस केस में, मैंने HCl ऐड किया, जैसा मैनुअल में लिखा है कि फर्स्ट ऐड HCl। तो HCl ऐड करने से क्या होगा, ऑलरेडी H प्लस आयंस रहेंगे, फिर जैसे ही आप H2 गैस पास करोगे तो दिस H प्लस आयंस won't allow this H2S to dissociate more, so you will have less sulfide. In less sulfide concentration only Cu can form CuS, Ni सल्फाइड से मिलेगा ही नहीं, प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं, तो Ni2 प्लस सोल्यूशन में रह गया, Cu2 प्लस को आपने निकाल लिया CuS के फॉर्म में। फिल्टर करो, सेपरेट कर लो। अब सोल्यूशन में क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ Ni2 प्लस। आप बोलेंगे सर इसमें सिर्फ Ni2 प्लस है, मतलब वेरी गुड, आप इसमें H2S डाल दोगे, फिर आप सोचोगे कि H2S इसके अंदर जाएगा और NiS बनाएगा। हाँ ठीक है बनाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, Ni2 प्लस फ्रॉम ग्रुप 3b गेट प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। यस ये तो पता है, बट NiS का जो सल्फाइड है, निकल सल्फाइड जो है, उसका जो KSP है वो ज़्यादा है। एंड इफ NiS का KSP is more, it requires more sulfide for precipitation, क्योंकि उसका KSP ज़्यादा है। तो आप अगर सिर्फ इस केस में H2S डालोगे तो H2S is a weak electrolyte, it produce sulfide ion, but that sulfide ion is not sufficient to remove all Ni2 प्लस, बिकॉज NiS का KSP ज्यादा है तो उसको ज्यादा सल्फाइड चाहिए। तो ये टाइम पे आपको ये रिएक्शन को फॉरवर्ड करना पड़ेगा ताकि वो ज्यादा सल्फाइड प्रोड्यूस कर सके, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको फॉरवर्ड कैसा करेंगे, क्या करो, मैनुअल पढ़ो। मैनुअल में लिखा है यू ऐड NH4OH फर्स्ट। NH4OH is a base, it will dissociate to produce, it's a dissociate to less extent to produce NH4 plus and OH minus। ये OH minus क्या करेगा, आपने पहले NH4OH डाला, OH minus प्रोड्यूस हो गया सोल्यूशन में, फिर आपने H2S डाला, जैसे H2S पास करोगे दिस OH minus आयंस विल कंबाइन विद H प्लस आयंस, न्यूट्रलाइज करेगा, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। और आपको याद होगा इक्विलिब्रियम पे अगर प्रोडक्ट कम हो जाए तो रिएक्टेंट ज़्यादा अपना डायरेक्शन फॉरवर्ड में करता है रिएक्शन टू इंक्रीज द प्रोडक्ट। सो since you add NH4OH and OH minus consume H plus ions, so according to Lee-Chadlius principle for some time H2S will dissociate to greater extent, क्योंकि H plus की कमी हो रही है, it will dissociate to greater extent, और जितना ज़्यादा dissociate होगा उतना ज़्यादा सल्फाइड बनेगा, मतलब सल्फाइड एंड concentration will increase, and if sulfide and concentration will increase then it will reach to its KSP, it will exceed KSP, मतलब IP will exceed KSP, the ionic concentration of sulfide will exceed KSP and precipitation will take place। So NiS के लिए मैंने रिएक्शन फॉरवर्ड किया, NH4H ऐड किया, फिर H2S, और ग्रुप 2 के लिए मुझे कम सल्फाइड चाहिए तो मैं कॉमन आयन ली-चाटलियस का रिवर्सिबल नेचर में HCl ऐड करूंगा ताकि H2S रिवर्स हो जाए। ओके गाइस, ठीक है। नाउ रिमेंबर सेपरेशन, ग्रुप सेपरेशन के लिए यू रिक्वायर द नॉलेज ऑफ KSP। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ ग्रुप 3A कटायन विच हैज Al3 प्लस Fe3 प्लस, दे आर ग्रुप 3B कटायंस के बारे में बात करते हैं हम लोग। दिस वॉज 3A 3B, सॉरी 2A 3B, ग्रुप 2 एंड 3B मैंने डिस्कस किया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्रुप 3A। ग्रुप 3A लाइक Fe3 प्लस फेरिक आयन ग्रुप 3A का पार्ट है, Al3 प्लस ग्रुप 3A का पार्ट है, एक्सेट्रा।
ठीक है। नाउ दिस ग्रुप 3A आर प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स, ये हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। ग्रुप 2 और ग्रुप 3B सल्फाइड के फॉर्म में, ग्रुप 2 में सल्फाइड कम चाहिए, रिएक्शन रिवर्स करो, ग्रुप 3B में सल्फाइड ज्यादा चाहिए, रिएक्शन फॉरवर्ड करो। बट ग्रुप 3A दे गेट प्रेसिपिटेटेड इन द फॉर्म ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स। आपको हाइड्रोक्साइड बनाना पड़ेगा इसके अंदर, तब जाके ये प्रेसिपिटेट होगे, ठीक है। बट बराबर देखना, सपोज मैंने एक सोल्यूशन लिया है, दिस सोल्यूशन हैज Fe3+, okay, along with Fe3+, you also have another cation from different groups like group 2, group 2B, group 3B, इसके different cations भी इसके अंदर present है, okay। Now 3B and 4th 5th वो भी अपने आयनिक फॉर्म में, समझो वो कटायन मैंने ले लिया है A+3 कटायन लिया है, एक डिफरेंट ग्रुप का है, आपको Fe3+ को सेपरेट करना है, ठीक है। अब सेपरेट कैसा करोगे, सेपरेट करने के लिए Fe3+ को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके हाइड्रोक्साइड में, लेकिन ये भी हाइड्रोक्साइड बना सकता है। तो अगर मैं सिर्फ NH4OH ऐड करूं, NH4OH इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट विल डिसोसिएट फीबली टू प्रोड्यूस NH4+ and OH- ions, but this OH- ions is sufficient to precipitate Fe3+, and along with that some amount of A3+ भी आ जाएगा बाहर, तो वो हमको नहीं चाहिए। तो हमने क्या इसमें स्टडी किया कि KSP of FeOH thrice is less as compared to KSP of the another group, that is AOH thrice लिख दिया मैंने, कोई एग्जाम्पल ले लिया, KSP कम है इसका as compared to this। तो अगर KSP कम है मतलब इट रिक्वायर्स लेस आयंस फॉर प्रेसिपिटेशन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया सब्सटेंस विद लेस KSP रिक्वायर लेस आयंस फॉर प्रेसिपिटेशन। क्लियर है? समझो हम लोग इसके अंदर ग्रुप 3B का ही कटायन ले लेते, 3B के कटायन में मैंने यहाँ पर समझो Zn ले लिया है, तो जिंक भी बाहर आ सकता है किसके फॉर्म में, जिंक हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। बट अगर मैं ग्रुप 3B हाइड्रोक्साइड्स और ग्रुप 3A हाइड्रोक्साइड्स को कंपेयर करूंगा तो ग्रुप 3B का जो हाइड्रोक्साइड है उसका KSP ज़्यादा होता है और ग्रुप 3A के हाइड्रोक्साइड का KSP कम है। तो सिंस इट हैज़ अ लेस KSP इट रिक्वायर्स लेस OH- फॉर PPT, और इसके लिए ज़्यादा OH- लगेंगे। तो सिर्फ NH4 डालोगे तो ये तो पूरा आ जाएगा, साथ में थोड़ा जिंक भी आ जाएगा बाहर। क्या करोगे, सिर्फ FeOH थ्राइस के लिए आप OH- का कॉन्सेंट्रेशन कम करो। कम कैसे करोगे, रिएक्शन रिवर्स करना है। तो जब मैनुअल पढ़ोगे वहां पर लिखा होगा कि बिफोर एडिंग NH4OH यू ऐड NH4Cl, बिकॉज NH4Cl विल डिसोसिएट टू फॉर्म NH4+ एंड Cl-। ड्यू टू कॉमन आयन द अबव रिएक्शन गेट व्हाट, रिवर्स। और ये एक सॉल्ट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन डिप्रेस होगा बिकॉज ऑफ कॉमन आयंस प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ड्यू टू दिस कॉमन आयन effect, this reaction get reversed, OH- concentration will decrease and less OH- is sufficient for precipitation of group 3A but not for group 3B जो मैंने एग्जाम्पल में लिया था। ऐसे डिफरेंट भी ग्रुप हो सकते हैं इसके साथ में, इसके साथ ग्रुप 4 हो सकता है, ग्रुप 5 हो सकता है कॉम्बिनेशन में। मैं फोकस सिर्फ इस पे कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में हम लोग KSP का नॉलेज ले रहे हैं कि यहाँ पर KSP कम है तो इसको लेस OH- लगेगा, इसके लिए रिएक्शन आपने रिवर्स किया विथ हेल्प ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। ओके गाइस, ठीक है, आई रब दिस आउट। जो भी नोट डाउन करना है पॉइंट नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं लास्ट पार्ट खाली, नीड टू अंडरस्टैंड। सपोज मैंने 2 बीकर लिए है, this beaker has AgNO3 0.1 molar, it has AgNO3 solution 0.2 molar, ठीक है। तो इसमें जो Ag+ आयंस होगा वो 0.1 मोलार का है और इसमें जो Ag+ आयंस होगा वो 0.2 मोलार का है। नाउ इन दिस यू ऐड अ सॉल्ट,
कॉमन सॉल्ट मैंने ऐड किया, दोनों में सॉल्ट ऐड कर दिया कॉमन, सपोज वो सॉल्ट मैंने ऐड किया है AgBr दोनों में, तो क्वेश्चन ये है कि AgBr ज़्यादा किस में सॉल्युबल होगा, इन 0.1 मोलर AgNO3 एंड 0.2 मोलर AgNO3। सो आंसर इज कि AgBr सॉल्युबल कब होगा, when it goes inside the water and get ionized, ठीक है। बट इफ देर इज अ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, तो कॉमन आयन की वजह से इनका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जब आप AgBr इसमें डालोगे तो इसमें कॉमन आयन कौन मिलेगा, Ag+, जो कितना है 0.1 मोलार। इसमें AgBr डालोगे तो इसमें कॉमन आयन क्या मिलेगा, इस सॉल्ट के लिए Ag+ मिलेगा, कितना है 0.2 मोलार। बट हियर द कॉमन आयन वैल्यू इज मोर, और जितना कॉमन आयन बढ़ता है सोल्यूशन में उतना ही सॉल्युबिलिटी किसी दूसरे सॉल्ट का कम हो जाएगा, बिकॉज कॉमन आयन इफेक्ट रिवर्स द इक्विलिब्रिया, डिक्रीज द solubility of a salt. So we can write down कि due to common ion effect, due to more common ion, the solubility of AgBr will be less. तो याद रखना इसमें less soluble होगा due to more common ion, और इसके अंदर it will be more soluble due to लेस कॉमन आयन। और अगर मैंने वाटर ले लिया तो वाटर में तो और ही ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। सो कॉमन आयन होने की वजह से द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट विल डिक्रीज इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी एंड वी हैव कवर्ड द एंटायर पार्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रिया। अब तक के सब कुछ पार्ट हो गया है। गो थ्रू ऑल माई लेक्चर्स, मेक अ नोट ऑफ इट, solve MCQs, solve numericals. Okay guys, take care, bye.